सब ग्रुप जैसे आप जानते हैं कि सेट का सबसेट होता है, सेट में से कुछ एलिमेंट्स को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो जो नया स्ट्रक्चर निकल के आता है उसे सबसेट कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर कोई ग्रुप अगर गिवन है आपको जी कॉमा स्टार, मान लीजिए ग्रुप है, तो उसका एक सबसेट जिसको अधिकतर कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एच इज अ सबसेट ऑफ जी, उसको आप सब ग्रुप तब बोलेंगे अगर एच भी अपने आप में एक ग्रुप होगा। इसका मतलब एच भी सेटिस्फाई करेगा सारी की सारी ग्रुप एक्सियम्स। अगर एच which is a subset of group G, if H satisfy all the group axioms with respect to that star operation, then we will call that H is also subgroup। तो ये मतलब होता है। है और चार एक्सियम्स कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है क्लोजर एक्सियम, सेकंड इज एसोसिएटिव एक्सियम, थर्ड इज आइडेंटिटी एक्सियम एंड फोर्थ इज इनवर्स एक्सियम, राइट? नाउ एग्जांपल्स, now this is the multiplicative group 1 omega omega square, it has three elements, right? And the operation is multiplication. So if I pick just one element, if I choose this single element and I place it inside this set structure, then this thing capital H, I have named it as H1. So this H1 is a group in itself. If you check all the axioms are verified on this H1, right? चाहे आप क्लोजर चेक करें, चाहे आप एसोसिएटिविटी चेक करें, चाहे आप आइडेंटिटी चेक करें या फिर इनवर्स चेक करें, सारी की सारी इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। हर्षित शर्मा, अगर आप मेरे साथ माइक पे बने हुए हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। First is closure axiom. If I pick two elements from this, then their product should be belonging to again in this H1. But unfortunately there is a single element. यहाँ दो तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही एलिमेंट है। क्यों? Yes sir, एक ही। Yes or no? तो इसी को दो बार ले लेते हैं। 1 into 1. What is 1 into 1? 1. 1 that belongs to this, right? So closure is satisfied. Of course, multiplication operation has been associative since class second or third. I'm not going to check that, right? Now check for the identity. Is it containing the identity element, multiplicative identity? Yes or no? Yes. Okay. Now we'll search for the inverse of the elements which are present in H1. 1 is the only element belonging to this. What is the inverse of 1? What is the multiplicative inverse of 1? 1. 1. So this element has inverse, and luckily that one is present inside this H1. So can we say that H1 is a group? Yes sir, 4 axioms satisfy होगा तो axiom। Oh, yes, and we will call that individually। अगर आप इसको देखेंगे individual identity के तौर पे it is a group, but in relation to G we will say that H is a subgroup of G because H has been taken out from G actually. Yes or no? Yes sir. Okay, and if I pick the whole of G, if I choose another subset which is actually the equal to group itself, then of course this will be a group। ये तो होगा ही होगा क्योंकि वो G के इक्वल है। Okay, and these two special subgroups are called trivial subgroups। Trivial word is used because they are always subgroups। Okay, either you just pick the identity or you choose the whole of group, they are always subgroups, right? Right sir. Now Harshit, see the second structure. This is also multiplicative group with 4 elements, right? Those are called fourth roots of unity. If I choose this single element, you know that this is a trivial subgroup, right? And you also know about H3 which is equal to G, that is also a trivial subgroup. But what if I choose H2 equal to 1 and -1? I have picked just two elements, this and this, and luckily this set is also making a group. If you check all the axioms on it, every axiom will be satisfied। Okay, right? Okay sir. हाँ, check कर लीजिए। If you multiply these two elements, what will be the answer? If you multiply these two elements, क्या होगा आंसर? So -1 closer and that is belonging to this, and closer की वो associativity की check करके time waste मत करिए। Multiplication is always associative। What is the identity? Okay, 1 is the identity। Yes, and yes inverse sir, of and also -1 inverse is there। Okay, fine। What is the inverse of -1? 1। No, I am not talking about additive inverse. I am asking for multiplicative inverse। What is the multiplicative inverse of -1? -1. Okay, so all axioms of group axioms are satisfied on this set also, but this is not the trivial one। ये trivial वाला तो नहीं है। trivial तो ये दोनों होते हैं, one होता है या पूरा G होता है। ये से कहते हैं non trivial। Okay, H2 will be non-trivial, so H2 is a non-trivial। Okay, now you understood the difference between trivial subgroup and in non-trivial subgroup? Yes sir. Very good। Now see this big, very big group, and this is infinite group actually, additive group of integers। You all know about this, right? Okay, sir, if one now thing I have doubt, हाँ, sir, yeah, एक doubt है। yes अगर please। सर
उसमें हमने आइडेंटिटी 1 लिया था, बट इन केस हाँ किसी ग्रुप का सब ग्रुप अगर आइडेंटिटी 0 हो तो उसमें H1 हाँ 0 और H2 इक्वल G, तो क्या वो भी ट्रिपल होगा हमेशा? या ऑफ कोर्स द ट्रिवियल जो सब ग्रुप्स होते हैं उसमें जीरो आता है, आइडेंटिटी ये लिखा है नीचे यहाँ पे, यहाँ लिखा है ई आइडेंटिटी आना चाहिए, पूरा जी आना चाहिए, दोज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप्स. Okay, ओके ओके whatever is the identity, if 0 is the identity then write 0, if you write 1 is the identity then write 1. both cannot be identity simultaneously, एक साथ तो दोनों होंगी नहीं identity, तो 0 होगा 1 होगा, क्यों? यस सर ठीक है Okay, now the third one, see this is infinite additive group, ये आप जानते हैं. इसका सब ग्रुप लेना है अगर आपको, if you choose only even integers, choose only even one, जैसे -4 -2 0 2 4, right? राइट सर Okay, and that can be obtained actually by multiplying this 2 by z by 2. If you multiply z by 2, then every element of this z will be doubled, yes or no? यस सर Okay, and on doing so, if you multiply z by 2, every element will get doubled, but you can see that this new structure is a subset of this old structure. Can you see that? यस सर Okay, so though the this structure has been obtained by multiplying the first structure by doubling every element, but surprisingly the new structure is a subset of the previous one. ये surprising की बात है, हालांकि आपने डबल करके बनाया, वो तो बड़ा होना चाहिए था, क्यों? सर तो Are you getting my इनफाइनाइट point? सेट है तो यस सर Infinite है इसलिए ऐसा हो रहा है. Okay, now this is also a group. If you check all the group axioms, they all will be satisfied on this structure. You add two elements, any two elements, the answer will again be in this set, right? 0 is the additive identity. Every element is having its additive inverse, like -2 is inverse of 2, -4 is inverse of 4, -6 is inverse of 6. So every element is having a unique inverse. So all the four group axioms are satisfied on it. It means we can say that this subset is actually a subgroup of this original group. Are you getting my point? यस सर Similarly, if you multiply all the elements of z by number 3, that will give you 3 times of z, right? You can see that every element of z is actually tripled. Can you see this? And this is यस also a सर group. ये भी चार, हाँ ये भी चार एक्सियम्स आप चेक करेंगे, सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी. इवन आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, इवन आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इवन आप m से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. m is any number, any integer actually, not number, integer. हाँ, तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी अ सब ग्रुप. ओके हर्षित, ओके आर दे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल? ये जितने आए हैं ट्रिवियल है नॉन ट्रिवियल है? सर नॉन ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल. बट इफ आई चूज m इक्वल टू 1, if I choose m equal to 1 and multiply it by 1, that will be trivial. Okay, fine, right. चलिए आगे बढ़ते हैं. Remark that is very important. In spite of proving all the four group axioms in H1, इसमें टाइम वेस्ट होता है. अर्चित, आपको नहीं लगता 4 एक्सियम चेक करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों? यस सर तो टाइम सेव करने के लिए एक ही लाइन का टेस्ट होता है, वो ये है कि अगर A एलिमेंट है H के अंदर, B भी एलिमेंट है H के अंदर, और अगर A स्टार B इनवर्स belongs to H, then we will say that H is a subgroup of G. So this is a one line subgroup test, very super important in order to save time. अगर आपके पास वक्त बहुत ज्यादा है तो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि आजकल की भागदौड़ की दुनिया में वक्त की कमी सबके पास है जाता है, तो इसीलिए टाइम आपका बचा देगा. लेकिन ये सिर्फ सब ग्रुप चेक करने के लिए होता है, ग्रुप चेक करने के लिए नहीं होता है. दिस टेस्ट इज जस्ट to prove that something is a subgroup of a group G. Subgroup का होता है one liner test. Okay. ओके Now the second point, in order to determine all the non-trivial subgroups of G, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे non-trivial subgroup आप निकाल पाए, देखिए ट्रिवियल तो हर कोई निकाल लेता है, ट्रिवियल निकालना बड़ा आसान है. ट्रिवियल सबग्रुप में बड़ा आसान होता है, एक बार आइडेंटिटी को लिख दो और एक बार किसको लिख दो, पूरा ग्रुप लिख दो, है ना. हाँ, लेकिन नॉन ट्रिवियल निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है. तो उस मुश्किल काम को आसान करने के लिए रिमार्क नंबर 2 है, वो कहता है कि कैसे आपको ढूंढना है. यू फाइंड ऑल दी, सारे एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, जी के एलिमेंट, वो बीटा एलिमेंट आपको निकालने हैं जो कि जनरेटर नहीं है. आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग. आई टोल्ड यू इन द साइक्लिक ग्रुप में, जब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ग्रुप से जनरेट हो जाता है जी तो उसको जनरेटर कहते हैं. तो आपने वो एलिमेंट्स पिक करने हैं जो जनरेटर नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट हर्षित? You need to spot only those elements of group G which are not the generators of G, because generators are unfortunately those elements of G which actually generate all the elements of G.
So you are going to have a trivial subgroup of G, but you don't want trivial subgroup, you want non-trivial subgroup. That's why you need those elements of G which are non-generators of G, जो generate ना कर पाए. ठीक है, खैर इसको आप अभी एग्जांपल में बचा के रखिए, एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा. लास्ट remark is already discussed, I think. The two trivial subgroups of group G are E and this only. Okay. Okay. Right. Now आगे बढ़े. Yes, sir. Question क्या रहा है? Question is determine all the subgroups of Z6 के subgroup. You know what is Z6? Does 0 belong to Z6? Yes or no? Yes, sir. Okay. And the operation is modulo 6. Okay, addition modulo 6. So हमने इसके सारे के सारे सबग्रुप निकालने हैं हर्षित. हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करेंगे. पहले तो हम इसके ट्रिवियल सबग्रुप्स निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे? नॉन ट्रिवियल सबग्रुप्स. ठीक है. ओके, तो शुरू करते हैं. पहले हम इसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं. यही इसके एलिमेंट्स होते हैं, देख लीजिए. वी स्टार्ट विद 0 एंड वी एंड अप टिल 5 बिकॉज 6 से कम तक होना चाहिए. ठीक है. हर्षित शर्मा, ये बात तो सबको पता है कि ट्रिवियल सबग्रुप्स आर ओनली टू सबग्रुप्स. वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो होता है एंड द अदर वन इज द कंप्लीट Z6. ये याद रखना, ट्रिवियल में हमेशा दो ही होते हैं. ओके ओके सर. ओके. नाउ नॉन ट्रिवियल सबग्रुप्स कैसे निकाले जाते हैं, प्लीज. ये रिमार्क नंबर 2 का मैं यूज करने जा रहा हूँ. अब आप इसको देखिएगा क्या मतलब है. द जनरेटर्स ऑफ Z6 आर 1 and 5. डू नो हाउ दे आर कंप्यूटेड और हाउ डू यू नो दैट दीज आर द जनरेटर्स? कल लास्ट लेक्चर में कोई टिप है आपके पास? वन लाइनर टिप which helps the students in order to identify that it's generator or not. One line tip. सर वी चेक अगर वो एलिमेंट का मल्टीपल दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप मल्टीपल होना चाहिए. नहीं, अगर उन एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए. इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है पहले बताइए. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप? सर 6. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर कितना है? 1 को कितने टाइम्स आप ऐड 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे करके, राइट? 6 टाइम्स ऐड करेंगे तब जाके 0 आ जाएगा. ऐसे 5 का ऑर्डर भी कितना है? 6. 5 has to be added 6 in 5 plus 5 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा आपको. 30 को 5 6 से, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 is inverse of 1, राइट? ठीक है. तो there are only two generators inside this Z6. We have done this in earlier क्वेश्चन. ठीक है. तो ये तो जनरेटर हैं, तो इनको नहीं लेना है आपको. जनरेटर्स आर नॉट अलाउड इफ यू आर सर्चिंग फॉर नॉन ट्रिवियल सबग्रुप्स. नॉन जनरेटर एलिमेंट कौन कौन से होंगे इसके? 1 और 5 को छोड़ दीजिए. Remove this and remove this. What are the other elements? 2 3 4. 4, right? Do not take identity element, क्योंकि identity element से कोई ये वाला जनरेट होता है बस. ठीक है. identity element 2 3 4 तीन सब ग्रुप मिलेंगे आपको. ठीक है. निकालेंगे कैसे? देखिए नीचे निकालने का तरीका, उसकी पावर्स आप करते चले जाएंगे. देखिए, प्लीज पे अटेंशन. This is super important and very easy actually. Do not get confused. Okay. Now see, I have taken 2 and can you see this notation? 2 के से पहले भी एक सिंबल लगा रखा है, ये वाला सिंबल, ये वाला. इसका मतलब होता है 2 जनरेट करेगा. हाँ, you are considering all the powers of 2. तो 2 की पावर 1 लिखा, 2 स्क्वायर किया, 2 क्यूब किया. ओके अर्चित? ओके सर. ओके. But you should ask me, sir, why you stopped at 2 cube? Why don't you write 2 4 etc. ये आपने पूछ सकते हैं मुझसे. ओके. हाँ ये सर पूछने वाला ही था. ओके, पूछने वाला क्वेश्चन था. चलिए, 2 का पावर 1 कितना आएगा? 2 स्क्वायर 4. 2 क्यूब 0. 2 cube is 6. Yeah, 2 plus 2 plus 2. Do not multiply. 2 cube is, yeah, 2 cube is actually 2 plus. हाँ, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 2 क्यूब को 8 लिख देते हैं. वो 8 नहीं है, प्लस करना है. आईडी ऑपरेशन ये है. और ये आंसर कितना आएगा? 0. तो दैट्स व्हाई एज सून एज यू गेट द आइडेंटिटी. 0 मिल गया आपको. आइडेंटिटी मिली या नहीं मिली? मिल गई ना? मिल गई सर. मिल गई. जैसे ही आइडेंटिटी मिलेगी तो अगला वी शुड स्टॉप, बिकॉज अगर आप 2 की पावर 4 निकालेंगे देन यू विल अगेन गेट दिस 2. साइकिल रिपीट हो रही है, पीरियोडिसिटी खत्म हो गई. जो जैसी आइडेंटिटी मिलेगा, अगला एलिमेंट अगर आप लिखेंगे, इफ सपोज यू राइट 2 की पावर 4, देन 2 की पावर 4 विल बी अगेन 2. इफ यू राइट 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 will be again 5, then 2 की पावर 6 will be again 0. So there is no point to repeat elements. That's why I stopped at 2 to the power 3. इसीलिए मैंने 2 की पावर 3 के आगे कुछ नहीं लिखा था. ठीक है अर्चित? ओके सर. ओके, नाउ थिंक अबाउट 3. 3 की पावर्स करते हैं. 3 की पावर 1 कितना? 3 होगा. 3 का स्क्वायर कितना होगा? 6. 6 से 6 डिवाइड 0. 0 मिल गया तो फिर आगे लिखने का जरूरत नहीं, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया आपने. राइट? ओके, राइट सर.
चलिए फिर नेक्स्ट एलिमेंट मैंने 4 भी कहा था। 4 मैंने 1 और 5 को कैंसिल कर रखा है, सिर्फ तो 4 को कंसिडर किया। 4 टू द पावर 1, 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 420। चेक कर लीजिए ये यार। 4 3 12 12 6। हाँ यस सर। Right. Can you see that these two are same? Can you see that? Yes sir, same. They are same. Why they are same? Do you know that these two elements have some relationship between them? What is the relationship between 2 and 4 in this group? Sir, inverse. Inverses. That's why I told you earlier that whatever is the property of the original element, the same property is possessed by its inverse, right? जैसा हाँ बिल्कुल सेम टू सेम डुप्लीकेट होता है, राइट। चलिए खत्म हो गया। नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक तो 240 एंड 30। डू नॉट रिपीट एनीथिंग। 240 लिख दिया आपने, 30 दो ही आए हैं नॉन ट्रिवियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि कैसे किया हमने इसको? yes, आपने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, दोज वर नॉन जनरेटर्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now Harshit, what is the operation here? Multiplication? Sir, right? Wait, black screen होगी due to bad black network. screen होगी। Okay. तो मेरा नेटवर्क वीक है। कोई बात नहीं, मेरा तो नहीं है वीक कहीं, मैं अपना देख लेता हूँ। मेरा भी कुछ मेरा तो ठीक ही लग रहा है। चलिए चलिए कोई बात नहीं। गुरमनप्रीत आपको दिख रहा है? बी फास्ट प्लीज गुरमन। यस सर। इसमें 0 होएगा नहीं होएगा इसके अंदर? इसमें नहीं सर, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। कहाँ से? मल्टी 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाना है। 7 पे भी नहीं लिखना क्योंकि एक कम तक जाता है। इसका ऑर्डर बता दो कितना है, कितने एलिमेंट है इसमें? 6 है ना? यस। चलो ठीक। पहले ट्रिवियल वाले सब ग्रुप तो सबको पता होते हैं। कौन कौन सा होगा ट्रिवियल वाला? एक तो आइडेंटिटी वाला होगा अकेला, और एक पूरा का पूरा होगा। ठीक है चलो अब कौन सा निकालेंगे? नॉन ट्रिवियल निकालेंगे। ठीक है नॉन ट्रिवियल निकालने के लिए पहले जनरेटर कौन कौन से हैं? क्या ये 3 जनरेटर है इसका? आप जानते हो कि 3 की पावर 6 करेंगे तब जाके 1 आएगा। 3 को जब 6 बार जोड़े, मल्टीप्लाई करना है इसमें, मल्टीप्लाई 3 को हो गया 6। इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। इसका भी 2, इसका भी 2 2 2 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 8 को 7 से डिवाइड करेंगे हैं? 3 कैसे आएगा? क्या कह रहे हो? 7 से करना है ना डिवाइड, तो मॉडुलो 7 है। हाँ कहीं मॉडुलो 6 मत कर देना, मॉडुलो 7 है। ठीक है तो 3 जनरेटर है या नहीं है? यस 3 जनरेटर है। 3 का इनवर्स कौन है इस ग्रुप के अंदर? ढूंढना जरा जल्दी से अपनी निगाहों से। 5 3 5 जब 15 होता है और 15 को डिवाइड करो 7 से तो 1 आ जाता है ना? यस सर। ये बच्चे हाँ तो 5 भी जनरेटर होना चाहिए। 2 जनरेटर मिल गया आपको, और कोई नहीं है जनरेटर। तो जो जनरेटर नहीं है 3 भी जनरेटर हटा दो, 5 को भी हटा दो। बचे कौन कौन से? आइडेंटिटी तो हटा देते हैं वो। 3 4 6 चेक करना है। 3 पहले 3 की पावर चढ़ाएंगे। 3 की पावर ऐसे, अरे ये तो 2 गलत कर रखा है क्या? अच्छा 2 4 6 सॉरी। हाँ 2 की पावर 1 कितना होता है गुरमन? 1 2 2 स्क्वायर 4 2 की पावर 2 क्यूब 8 डिवाइड करो 7 से। तो आईएनटी आ गई तो अब मत करना, अब ब्रैकेट बंद कर दो क्योंकि आईएनटी आ गई तो रिपीट होंगे, वो लिखोगे भी तो कुछ फायदा नहीं है। फिर 4 के लिए करो गुरमन। 4 की पावर 1 4 स्क्वायर 4 क्यूब 16 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर 2 आ जाएगा है ना? क्यों? 4 का क्यूब होता है 24। 24 को डिवाइड करो 24 को डिवाइड करो 7 से। ये तो गलत हो रहा है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 16 गलत हो 64 होता है सर। 64 सॉरी 64। हाँ ठीक है 64 सॉरी। ओके ईशान। नाउ 6 के बारे में 6 की पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना? 36 को ठीक है। तो ये 3 आए, वो रिपीट तो नहीं कर रहे? तीनों अलग अलग आ रहे थे ना कि रिपीट कर रहे? तो ऊपर वाले 2 रिपीट कर रहे। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या 2 का इनवर्स 4 तो नहीं था कहीं? हाँ 2 का इनवर्स 4 था ना? 2 4 8 होता है, 8 को डिवाइड करो 7, तो इसीलिए रिपीट करेंगे। वो करना ही है रिपीट, इनवर्स का तो सेम ही आता है। तो कितने आए नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप? 2 आए कि 3 आए? 2 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये अगला क्वेश्चन सर वन थिंग। हाँ सर अगर नॉन ट्रिवियल हम चेक ही कर रहे हैं तो इनवर्स हम पहले ही कैलकुलेट कर लें तो हमें एक कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा एलिमेंट का? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 to 4 इज अ सब ग्रुप ऑफ Z7 क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस 7। ये प्रूव करना है कि सब ग्रुप है ये।
अब ये निकालने नहीं है, पिछली बार तो सारे निकालने थे, इस बार प्रूव करना है कि सब ग्रुप है। कैसे प्रूव करना है? दो तरीके हैं, मेथड वन। एक तरीका तो गुरमनप्रीत वही वाला है कि बोला कि अगर ये सब ग्रुप है तो अपने आप में चारों एक्सियम सेटिस्फाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसको? यस सर, करनी चाहिए। चलो ये कंपोजिशन टेबल आता है बनाना? यस सर। कितना यहाँ कितना आएगा? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, इधर इधर यहाँ 2 1 2, 4, यहाँ 1, यहाँ 4 1 2। ठीक है, ये क्लोजर आ गया। वो याद है और सब कुछ, वो टेबल में सारी एंट्री उसी में आ रही है जी में, वो सब चार बातें जो लिखते हैं, नहीं लिखते थे ऐसे करके चार चीजें? यस सर, जी में आ गई। आइडेंटिटी बता दो पहले, आइडेंटिटी कौन है? आइडेंटिटी 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 4 4 का इनवर्स 2। चलो ठीक है, ये सब यही बताया तुमने। सब ग्रुप हो गया, मतलब ग्रुप हो गया, ये ग्रुप है तो सब ग्रुप भी होगा, जब इससे निकला है सब ग्रुप ही होगा। तो एक तरीका तो ये मेथड वन है, ये तो पुराना मेथड है। नया मेथड वन लाइन वाला मेथड बताया था ना कि एक लाइन वाला मेथड होता है, ऊपर बताया था, तो यहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा था, ये वाला क्या 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 था मेथड? ये एक एलिमेंट ले लो एच से, दूसरा बी ले लो और ये सॉल्व करो, ए और स्टार बी इनवर्स करो। अगर वो भी एच के अंदर आ गया तो फिर समझ जाना कि ठीक है। ओके चलो, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ ये होता है, ये रिजल्ट यूज करना है, रिजल्ट वही। एच के एलिमेंट कितने एलिमेंट? 3 है। एक बार इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, ठीक है, है ना? चलो ये चेक करो, ए ले लिया आपने 1 को, बी ले लिया 2 को, तो ये बताओ कि ए इस पे लगाना है, ए स्टार बी इनवर्स। स्टार क्या ऑपरेशन क्या है आपका? और स्टार आपका हाँ, तो बी का 2 का इनवर्स कितना है तुम्हें बताना है। 2 का इनवर्स कितना है? 2 को किससे 4 होगा, 2 को 4 जाए 8 होता है, 7 से डिवाइड 1, इसको मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। सही बात है, क्या 4 एच के अंदर आ रहा नहीं आ रहा ना? ठीक है, अगली बार ए को 1 बी को 4 ले लो, ऐसे बदलते रहो, बार बार बदलते रहो, फिर से चेक करो, फिर से वो उसी के अंदर आ जाएगा। अगली बार ए को 2 ले लिया, बी को 4, फिर ए को, ऐसे करते रहो 3-4 बार, 2-3 बार कर लो और फिर लिख दो एटसेट्रा। क्या लिख दो? एटसेट्रा, क्योंकि आएगा आएगा आएगा, हर बार आएगा, तो जो भी आएगा इसके अंदर आएगा, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप हो गया, ये जल्दी हो गया क्वेश्चन। ठीक है चलो आगे बढ़े। कोसेट, क्या नाम है? कोसेट, कोसेट, कोसेट क्या होता है? कोसेट के लिए पहले तो एक एच चाहिए होता है। एच क्या होता है? सब ग्रुप होता है। किसका सब ग्रुप होता है? जी का। ऑपरेशन क्या है? स्टार है। कोसेट जो तब समझ में आएगा अगर आपको सब ग्रुप समझ में आ गया। सब ग्रुप जिसको समझ में नहीं आएगा, कोसेट समझ में नहीं आएगा। तो कोसेट समझ अगर आपको पढ़ना है तो पहले एच होना चाहिए सब ग्रुप किसका? जी का। ऑपरेशन क्या है? स्टार। ठीक है, फिर मान लो कैपिटल जी का एक एलिमेंट है, ये क्या है? एलिमेंट। लिटिल जी क्या है? इसका एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ग्रुप जी का। ठीक है, फिर ये काम करना है, देखो क्या काम कर रखा, पढ़ो। जी का ऑपरेट किसके साथ करा? किसके साथ ऑपरेट करा? एच के साथ। जी क्या है? एलिमेंट है। ग्रुप जी क्या चीज है? एलिमेंट है, सेट है? जी, लिटिल जी एलिमेंट। जबकि एच, एच क्या है? कैपिटल एच क्या है? सब ग्रुप। दोनों का नेचर अलग है, एक तो बेचारा एलिमेंट है छोटा सा, एक ये ग्रुप है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इन दोनों को बीच में ऑपरेट कर रखा। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, दो एक जैसी चीजों के बीच में होता है ऑपरेशन, तो इंसान इंसान के बीच में दोस्ती होती है, इंसान और जानवर के बीच में थोड़ी दोस्ती होती है। ऑपरेशन तो सेम के बीच में लगता है ना, क्यों? हाँ, जबकि ये क्या चीज है? एलिमेंट। जबकि ये क्या है? ये तो ग्रुप है, पूरा सेट है, तो इनके बीच में ऑपरेशन कैसे? तो बड़ा आसान ऑपरेशन है, ऐसे होता है। देखो ये जो जी होता है ना, ये इसके अंदर घुस जाता है। कौन किसके अंदर जाएगा? जी छोटा है कि एच छोटा है? छोटा कौन है? एलिमेंट ही जाएगा, उसके एलिमेंट अंदर, उसके दरवाजे से अंदर चला जाएगा। किसके दरवाजे से? ग्रुप के दरवाजे के अंदर, और सबके साथ ऑपरेट हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट एच के अंदर थे। आ गया समझ में? जो एलिमेंट है जी, लिटिल जी, वो कैपिटल एच जो ग्रुप है उसके अंदर घुस जाएगा, और उसके अंदर घुस के हर एलिमेंट से वो ऑपरेट कर देगा। बस जो आंसर आएगा उसे, इसी को बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट कोसेट। और लेफ्ट क्यों कहते हैं? वो जी ने कहां से एंट्री करी? लेफ्ट से एंट्री करी एच के, कि राइट से? लेफ्ट से। और अगर राइट से एंट्री कराओगे तो क्या बोलेंगे? राइट कोसेट। राइट कोसेट। आ गया समझ में? यस सर। अब एग्जांपल देखोगे तो बहुत, तुम बोलोगे ये क्या बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हो, इतनी आसान चीज पढ़ाते हैं कोई? देखो ये ग्रुप है जी, कौन सा ग्रुप है? मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन होता है इसका? मल्टीप्लाई होता है। इसका सब ग्रुप होता है, ये इसका सब ग्रुप है। देखो सब ग्रुप है। ट्रिवियल वाला है, नॉन ट्रिवियल वाला है? ये ट्रिवियल वाला। ट्रिवियल वाला, बहुत बढ़िया। अब हाँ ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? देखो लेफ्ट, पहले क्या निकालूंगा? लेफ्ट कोसेट, फिर निकालूंगा राइट कोसेट। तो पहले मैं तुम्हें लेफ्ट कोसेट सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहला एलिमेंट उठाओ जी का, कौन है? 1।
वन को स्टार क्या है हमारा, स्टार क्या है इस क्वेश्चन में, डॉट है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। चलो करो मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई करो एच के सारे एलिमेंट के साथ, एच का एक इकलौता एलिमेंट है, बोलो क्या आएगा आंसर, 1 ही आ जाएगा। चलो अगला एलिमेंट कौन है, अगला एलिमेंट कौन है जी का, डब्लू, ओमेगा, ओमेगा को मल्टीप्लाई कराओ इससे एच से, बोलो क्या आएगा, कितना आएगा, ओमेगा। तीसरा एलिमेंट कौन है जी का, ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो एच से, ओमेगा स्क्वायर। ठीक ठीक है। ऐसे यहाँ पे इधर तो तुमने लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराया, अब राइट से मल्टीप्लाई करो कराओ, तो क्या आंसर अलग आएगा गुरमनप्रीत, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। क्यों सेम क्यों आएगा वैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई चाहे लेफ्ट से करो या राइट से, बात तो बराबर ही है ना, मतलब 4 into 3 करो या 3 into 4 करो तो आंसर तो टैली आना है, क्यों। यस। और प्लस होता तो 4 प्लस होता तो तब भी दोनों बराबर आते हैं। यस नहीं, क्योंकि प्लस में भी ऐसे होते हैं। साइन का डिफरेंस क्या है भाई, आपने एक बार सेम ही आएगा, सेम ही तो आएगा भाई, आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो किसी से, राइट से करो, क्या फर्क पड़ रहा है उसके, क्यों। जैसे x लिखा हुआ है, x आप इसको इधर से मल्टीप्लाई कराओ या इधर से कराओ, दोनों का आंसर 2x ही तो माना जाएगा। हाँ तो बस, तो फिर ठीक है फिर। तो अगला पढ़ो, Z6 किसके रिस्पेक्ट में होता है, +6 के रिस्पेक्ट में, ग्रुप है और ये इसका सब ग्रुप है, ठीक है भाई गुरमनप्रीत। चलो उठाओ पहला एलिमेंट उठाओ इसके अंदर से, पहला एलिमेंट कौन होता है इसके अंदर कौन है पहला एलिमेंट, 0 ऑपरेशन किस चीज का है इस बार, ये ठीक है। तो 0 से जीरो प्लस कर दो इसमें, करो बोलो कितना आएगा, प्लस करो 0, अरे 0 प्लस करना है इन सब में, 0 2 4 ये तो आएगा, किन सब में सर, ये एच, ये पढ़ो ना इसका क्या मतलब होता है, ये क्या है, ये 0 क्या एलिमेंट है, एच क्या है सब ग्रुप है, तो मैंने बताया एलिमेंट सब ग्रुप से कैसे ऐड होता है, वो अंदर घुस जाता है, उसके अंदर घुस के ऐड होता है वो, ठीक है। चलो 1 प्लस करो, इनमें 1 प्लस करो, कितना आएगा, 135। हाँ अब आया ना, तो मैं समझ 135 ना, यस। चलो 2 करो, 2 करो प्लस इनमें, 2 4 6 6 की 0, हाँ 0 डिवाइड नहीं करोगे, हाँ डिवाइड भी तो करोगे, भूलना मत डिवाइड करना। चलो 3 से 3 ऐड करो सब, 3 3 5 2, अच्छा नहीं 1, 4 ऐड करो, 4 1, अच्छा 4 + 2 4 0 4 0 4 2 6 2 8 8 2 आएगा। चलो 5 ऐड करो, 5 1 और 3, यही काम इस तरफ से करो, राइट हैंड साइड से करो, अभी तो लेफ्ट से करा ना काम तुमने, राइट से करो ये काम, सेम आंसर आएगा अलग आंसर आएगा, सेम ही आएगा, क्या बदलना लगे, क्योंकि प्लस तो दाएं से करो या बाएं से बात ही होती, एक ही होती है ना, सेम लिख दी, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। चलो अगला चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन, ये इस बार ये ले लिया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सोच के बताना, कहाँ से चालू होते हैं, 1 to 4 मतलब 1 से शुरू 4। चलो सबसे पहले 1 उठाओगे, उठाओ 1 उठाओ और करो, मल्टीप्लाई करोगे इस बार प्लस करोगे, मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे या 5 से डिवाइड भी करोगे बाद में, 5 में करेंगे डिवाइड तो। चलो फिर बता दो क्या आएगा, 1 करो 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 और 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करो, 2 10 और 0 0 2 4 8 होता है, 8 को 5 से डिवाइड करो, 5 नहीं, अच्छा डिवाइड करना है 5 से, 3 आएगा, ध्यान से करो गलत नहीं होना चाहिए। चलो 5 लगाते हैं। चलो अब बताओ इसका तीसरा बताओ, 3 से 3 2 ठीक है, और अगला 4 से करो, 4 और 4 4 16 और 5 से डिवाइड 1 आया। वैसे भी जो ऊपर आया एक ऊपर रिपीट आ गया, 1 4 आ गया ना, ऊपर आ गया था ना 1 4, और आपका जैसे ही 4 आया समझ जाना कि 1 ही आएगा, वो पक्का एक जैसे आते हैं, वो अलग नहीं आ सकते कोई भी, अगर ये 2 3 आया तो ये 3 2 हो जाएगा, क्या फर्क, नया नंबर नहीं आ सकता। चलो राइट साइड में भी यही कॉपी कर लूँ, बदलेगा तो नहीं कुछ, क्लोन से लगा दिए यहाँ पे, अरे दो इक्वल टू लग गया यार, डिलीट क्लोन, चलो बराबर ही आएगा, वैसे भी प्लस ही का तो साइन है ना, आगे बढ़ जाए। यस सर। ये दिमाग पढ़ो,
अगर जी कैसा If ग्रुप हो? G abelian group, then each left coset is identical to right coset generated by some element Z belongs to G. इसका मतलब समझे? अगर अगर ओरिजिनल ग्रुप आपका जी एबेलियन होगा अगर, तो हमेशा ऐसा होगा, हर लेफ्ट कोसेट राइट के बराबर आएगा। देख लो सारे बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लेफ्ट और राइट एक जैसे तो लग रहे हैं सारे के सारे, क्यों? Yes. और वो पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो ओरिजिनल ग्रुप था, ये वाला ग्रुप, ये एबेलियन था। कैसा था ये? Abelian. एबेलियन तो याद है ना? एबेलियन में ए स्टार बी Yes. करो या बी Oh, स्टार ए करो, बात बराबर ही है। हाँ, तभी तो आप चाहे 1 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या 1 को राइट से मल्टीप्लाई करो, आंसर एक ही आ रहा है, क्योंकि एबेलियन था भैया वो ग्रुप। ठीक है, yes. तो इसका मतलब ये लाइन ब्लू कलर वाली लाइन पढ़ो। अगर एच क्या हो? सब ग्रुप हो। किसका सब ग्रुप हो? एबेलियन ग्रुप जी का। ठीक है। Yes. Then तो फिर ए स्टार एच हमेशा एच स्टार ए के बराबर आएगा। चेक कर लो आप चाहो तो, चाहे आपने ये निकाला हो चाहे ये निकाला हो, आंसर बराबर आ रहा नहीं आ रहा दोनों का? yes. हाँ, क्योंकि ओरिजिनल ग्रुप कैसा था? Abelian. एबेलियन। अगर ये एबेलियन नहीं होता तब कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर आते हैं, जरूरी नहीं है, वो आ भी सकते थे नहीं भी आ सकते थे। ठीक है, Yes. और ये लिख भी रखा कि सारे एग्जाम्पल देखो ऊपर, ऐसे ही हो रहा है। चलो ये वाला पढ़ो। Two cosets left are either identical or disjoint. बस रुक जाओ, चलो यहाँ से मैच कराते हैं। इन दोनों को कंपेयर करो, ये आइडेंटिकल है कि डिसजॉइंट है? एक जैसे हैं कि बिल्कुल अलग है? Disjoint. डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मैं समझता हूँ उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताना गुरमनप्रीत, एक है 1 2 और एक है 2 4, ये आइडेंटिकल है कि डिसजॉइंट है? ये disjoint नहीं है, मतलब एक कॉमन है ना दोनों। हाँ, और आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल भी नहीं है। नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर ऐसा नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है, हमेशा ऐसा होता है या तो आइडेंटिकल आते हैं या फिर कैसे आते हैं? डिसजॉइंट। कोसेट जो होते हैं या तो एक जैसे आएंगे, एक जैसे बिल्कुल, या बिल्कुल भी एक जैसे नहीं आएंगे। ठीक है, Yes. चलो पहले और दूसरे के बारे में तुमने बोला कि आइडेंटिकल डिसजॉइंट है। इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों को कंपेयर करो, आइडेंटिकल डिसजॉइंट। Identical. वेरी गुड। इन दोनों को, ये identical. इन दोनों को, ये भी identical. इन दोनों को, ये disjoint. डिसजॉइंट। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि एक एलिमेंट कॉमन आ गया हो बाकी ना आए हो? ऐसा हुआ कभी अभी तक? नहीं. नहीं। अच्छा चलो इन दोनों को करो कंपेयर, आइडेंटिकल डिसजॉइंट। Disjoint. इन दोनों को, ये भी disjoint. इन दोनों को। Disjoint. तो बात सच है, ये वाला पॉइंट सच लिखा हुआ, ये लिखा हुआ जो इन्होंने, ये वाला पढ़ो जो भी तुमने पढ़ा था। या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर कैसे होते हैं? Disjoint. डिसजॉइंट। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? कि दोनों बराबर होते हैं। Yes. और डिसजॉइंट का मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन कितना आता है? It's 5. 5 आता है। कुछ आता ही नहीं कॉमन उसमें, मतलब आता ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि G1 एक एलिमेंट है, G1 एक एलिमेंट है, G2 किसके एलिमेंट है? कैपिटल G के। तो भाई ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? G1 से जनरेट होने वाला कोसेट है, और ये दूसरा वाला है G2 से जनरेट होने वाला। या तो ये बराबर आएंगे या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दो ही बातें होती हैं। और ये बातें क्यों होती हैं, फिर से इसके लिए क्या देखना है? ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लो और समझ जाओ। हो ही रहा है ऐसा तो क्या करें, हम क्या करें? तो हो ही रहा है ऐसा, हमने थोड़ी लिखा अपनी मर्जी से, हो ही रहा है ऐसा, आपने देख भी लिया। क्यों? Yes. गुरमनप्रीत, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि अगर ग्रुप जी एबेलियन होगा तो पक्का हमेशा लेफ्ट कोसेट किसके बराबर आएगा? राइट कोसेट का, बोला था ना? Yes. और अगर जी एबेलियन नहीं हुआ तो तब क्या होगा? तो आ भी सकता नहीं. वाह, तुम्हें हर चीज याद रहती है, अच्छी बात यह है, इसलिए तुम्हें बुलाते हैं। तो नॉन एबेलियन है ग्रुप जी, क्या है? कैसा ग्रुप है? नॉन एबेलियन है। तो देयर मे एग्जिस्ट, मैंने हो भी सकता है ऐसा, कि हो सकता है कि एक ऐसा ग्रुप सब ग्रुप हो, उसका एन एक ऐसा सब ग्रुप है जिसके लिए कि लेफ्ट वाला कोसेट किसके बराबर आ रहा? राइट कोसेट. राइट वाले सारे सब ग्रुप में कोई एक सब ग्रुप हो सकता है, उसका नाम भी बदल दिया जानबूझ के। उसका नाम क्या दे दिया? एन। क्या नाम दे दिया? कैपिटल एन। वैसे सब ग्रुप का नाम क्या देते हैं? सब ग्रुप को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? कैपिटल एच से। ठीक है, तो ऐसा सब ग्रुप जो कि ग्रुप एबेलियन भी नहीं था लेकिन तब भी उसके लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर आ रहे हैं, ऐसे सब ग्रुप को बड़ा स्पेशल नाम दिया गया है। कैसा नाम दिया गया है? क्या बोला गया उसको? नॉर्मल सब. नॉर्मल सब ग्रुप। आ गया समझ में नॉर्मल सब ग्रुप किसे कहते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप एक ऐसा सब ग्रुप होता है किसी नॉन एबेलियन ग्रुप का जिसके लिए लेफ्ट और राइट कोसेट एक जैसे आते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं पर आते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, यस सर. चौथा पढ़ो, अगर जी कैसा ग्रुप हुआ? एबेलियन. एबेलियन। तो हर सब ग्रुप उसका नॉर्मल होगा, हाँ या ना? अगर वो एबेलियन हुआ कि हर सब नॉर्मल ही होगा, क्योंकि हर बार लेफ्ट और राइट बराबर आएंगे। अभी आपने देखा अब आप इसको कैसा सब ग्रुप बोल सकते हो? कोई ऑर्डिनरी सब ग्रुप बोल सकते हो इसको या नॉर्मल बोल सकते हो इसको?
इसको नॉर्मल बोल सकते हैं क्योंकि जो भी लेफ्ट कोसेट है वो राइट के बराबर आ रहा। ठीक है, Yes. चलो बहुत बढ़िया, आ गया तुम्हें समझ में। अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तुमको और जितने भी क्लास में ज्वाइन हो रखे हैं सबको समझा देगा कि क्या करना है। पढ़ो क्वेश्चन। Consider a group Z7 and its subgroup H 1 to 4 ठीक है, ये and मल्टीप्लाई वाला है या कैसा वाला ग्रुप है? multiply का. ठीक है, क्या निकालना है पहले पार्ट में? Find all the distinct left coset of H in Z7. चलो सिर्फ लेफ्ट निकालना है, राइट नहीं निकालना है। टाइम एक ही जैसे तो आने हैं वो भी। क्यों आने हैं एक जैसे? क्योंकि ये कैसा है? ये एबेलियन। abelian. एबेलियन। अब आपको कैसे पता चला एबेलियन? आपने कोई कंपोजिशन टेबल बनाई है इसकी? अरे भाई इसका ऑपरेशन क्या बोला आपने थोड़ी देर पहले? Multiplicator. मल्टीप्लीकेशन। भले ही मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 है, लेकिन मल्टीप्लाई तो हमेशा ही होता है एबेलियन। दो नंबर को 4 into 3 करो या 3 into 4 करो, एक ही तो आंसर आता है। Yes sir. क्यों? चाहे आप ये निकालो चाहे आप ये निकालो, आंसर अलग अलग आएगा कि एक जैसा आएगा? Same आएगा. सेम आएगा। तो फिर ये एबेलियन है, ये एबेलियन है। इसका मतलब एबेलियन है तो जो भी लेफ्ट को सेट निकालो या राइट निकालो एक ही जैसे तो आएंगे, है ना? Yes. ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। ये जेड दे रखा है, Z7 प्लस ये होता है, Z7 क्रॉस ये होता है। Yes sir. चलो H1 2 3 दे रखा। चलो कोसेट निकालने के लिए सबसे पहले 1 पिक किया आपने। 1 पिक किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस कराओगे इस बार? Multiply. और मल्टीप्लाई के बाद 7 से डिवाइड करना भूलोगे या नहीं भूलोगे? Yes. नहीं भूलेंगे. चलो बोलो, करो मल्टीप्लाई 1 की, बोलो क्या आएगा? 1 2 4. 4 3 कहाँ गया? 4. हाँ? 3 तो 3 तो बोला लगाना. ही नहीं तुमने। 3 लगा नहीं मतलब 3 तुमने बोला ही नहीं। अरे अरे अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ ठीक है, 1 to 4 H से करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे करनी है ना मल्टीप्लाई। हाँ चलो अगली बार 2 से करो इसकी मल्टीप्लाई, बोलो। 2 4 और 1. 3 से करो इसकी मल्टीप्लाई। 3 6 और 5 है. 5 तो है ही नहीं यार, गड़बड़ हो रहा कुछ। 3 4 12, 7 से डिवाइड किया 7 5 12। 5 कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ ठीक है, कोई नहीं, आ गया 5। इसमें तो है 5, जी में तो है ना, ओरिजिनल में तो है। ठीक है। चलो 4 से करो। 4 1 और 16 2. 5 से 5 करो। 5 3 और 6. 6 से करो। 6 12 6 5 और 3. 3 यही तो आएगा कि 6 5 3 तो आ रहा था, तो वही तो आएगा, नया तो कुछ आ ही नहीं सकता। क्यों? चलो अब ये Yes. बताओ डिस्टिंक्ट कौन, इसमें डिस्टिंक्ट कौन? सारे डिस्टिंक्ट है, रिपीट भी मार रहे हैं कोई? डिस्टिंक्ट कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला, एक तो ये हो गया, Hmm. एक ये हो गया, बस 2 ही हैं। वैसे तो 6 हैं, लेकिन हैं तो दो ही तो Yes. हैं। क्यों? 2 ही हैं, Yes. बाकी तो बाकी रिपीट है ना। yes. 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स, लेफ्ट ब्रैकेट में लेना, लेफ्ट वाले निकाले हमने। चलो ठीक है, आ गया आंसर पहले वाले का। Yes sir. पहले वाले का हो गया। अब मुझे ये बताओ गुरमनप्रीत की, अच्छा चेक कर लो गुरमनप्रीत, किन्हीं भी दो का ये तो आइडेंटिकल आ रहे होंगे या वो आ रहे होंगे डिसजॉइंट? देखो पहले दूसरा कैसे आ रहे हैं, आइडेंटिकल है डिसजॉइंट है? Identical है. और पहला तीसरा पहले तीसरा disjoint. डिसजॉइंट तो हमेशा होगा, ऊपर लिखा हुआ था। चलो गुरमनप्रीत ये बताओ, एच नॉर्मल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सोच समझ के बताना। एच एच जो है नॉर्मल है या नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है? नॉर्मल है. क्यों है, वैसे रीजन? सेम ही होगा राइट वाला. राइट लेफ्ट सेम आएंगे? यस सर. तुम्हें कैसे पता? सेम ही आएंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव वाला है. मतलब ये कहना चाह रहे हो ना कि जो ओरिजिनल ग्रुप है वो एबेलियन है, ये तो कहना चाह रहे हो? Abelian. Yes sir. तो इसका मतलब कि जो एच है वो नॉर्मल आएगा। एवरी, बल्कि एवरी कोई भी लिखेंगे, हैंस एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. एक रिमार्क दिखाता हूँ मैं जबरदस्त वाला। वो रिमार्क मालूम है क्या है? वो रिमार्क ये है कि
मान लो लेट G1H कॉमा G2H कॉमा डैश GNH क्या है ये? सॉरी स्टार तो लगाया नहीं बीच में इनके, स्टार भी तो लगाना था ना, ऑपरेशन भी तो आएगा कुछ ना कुछ। अच्छा बुक्स में कई बुक्स में ना लगाते ही नहीं है स्टार को, उसको वो वैसे ही लिख देते हैं, मतलब स्टार बिना स्टार के लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा था अभी, वो भी चलता है। ओके यस सर। ये क्या है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट क्या चीज़ें हैं अपने आप में? क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? अलग अलग क्या चीज़ बोलते हैं इसको? कोसेट सर। कोसेट बोलते हैं, हाँ। ये डिस्टिंक्ट है सारे। जैसे यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट है? एक ये वाला और एक ये वाला, दो ही है ना डिस्टिंक्ट। यस। और टोटल थे कितने वैसे? 6, लेकिन डिस्टिंक्ट निकले दो, डिस्टिंक्ट निकले दो। तो वैसे ये बहुत सारे कोसेट होंगे, लेकिन मान लो इतने हैं डिस्टिंक्ट मान लो, तो देन ये इंपॉर्टेंट है। G1H, अरे फिर मैं से स्टार लगाना भूल गया, स्टार स्किप कर देते हैं कई लोग। G1H यूनियन G2 स्टार H यूनियन डैश डैश यूनियन GN स्टार H। गुरमनप्रीत बताओ यहाँ कितना आंसर आएगा, इसको देख के बताना समझ के। गुरमन को नहीं आ रहा तो कोई और उसकी मदद कर सकता है। डिस्टिंक्ट वालों का यूनियन करके क्या आता है? करो इनका यूनियन, क्या आएगा यूनियन करके? यूनियन करना आता है? यूनियन में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं कि सब मिला देते हैं यूनियन में? कॉमन होता है, जीरो आएगा फिर। अच्छा कॉमन तो इंटरसेक्शन में आता है, वो तो इंटरसेक्शन में आता है कॉमन, कॉमन थोड़ी लेना है। हाँ क्या आएगा यूनियन करके इन दोनों का? हाँ जल्दी बोलो। कॉमन तो इनमें कुछ है ही नहीं ना। अरे यार कॉमन नहीं लेना, ये कॉमन का साइन है कि किसका साइन है? यूनियन। ये तो यूनियन में है। यस। हाँ तो यूनियन करो ना, कॉमन क्यों ले रहे? लो यूनियन इन दोनों का, कितना आएगा? यूनियन लेना भूल गए लगता है तुम। देखो किसी और की मदद लो, फोन अ फ्रेंड, दो लाइफ लाइन फोन अ फ्रेंड की, किससे पूछूं? हर्ष रतूड़ी बताओ। सर वो पूरा ग्रुप बनाएगा। हाँ सारे एलिमेंट लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, प्लस ये भी 1 2 4 और ये भी लिख देंगे 3 6 5। तो ये तो बन गया वापस, हाँ सब आ गए, ठीक है। ये बन गया वापस इसके Z7 के, इसके इक्वल आ रहा है वो। गुरमनप्रीत अरोड़ा यस सर। आ गया समझ में? यूनियन का मतलब सब लिखते हैं यूनियन में मिलाकर। यस सर। तो कितना आंसर लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे क्या? बस G1H नहीं, बस होल ग्रुप आ जाएगा Z7। तो Z7 तो एग्जाम्पल में है, तो थ्योरी के हिसाब से तो जी आएगा ना, जी बोलते हो ना ग्रुप को तो तुम। यस यस। वो तो यहाँ आएगा Z7, इस क्वेश्चन में Z7 आएगा, लेकिन थ्योरी के हिसाब से जी आएगा, हमेशा जी आएगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, चेक और भी ऊपर कर लेते हैं। चलो इनका करना, इसमें बताना कौन कौन से डिजॉइंट वो अलग अलग वाले। एक ये वाला डिस्टिंक्ट है, ये वाला डिस्टिंक्ट है, दो है ना डिस्टिंक्ट, यस और नो? यस। इनका यूनियन करो, क्या आएगा? करो इनका यूनियन करो, कितना आएगा? क्या आएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसके अंदर वही होते हैं, 1 2 3 4 ही होता है इसमें। यस यस। हाँ तो जो भी हम लिख रहे हैं उसको सब में चेक कर लेना एक बार, सही होगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये चीज ये इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट, इसको याद भी रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लैग्रांजेस थ्योरम, ठीक है। लैग्रांजेस थ्योरम क्या होती है? बहुत आसान थ्योरम है, सुपर आसान। ये कहती है
let capital H be a subgroup of group G, मान लो इसका सब ग्रुप है, ठीक है, अंडर द ऑपरेशन, कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो रहा होगा, ऑपरेशन को आप क्या लिखते हैं, स्टार। मान लीजिए H सब ग्रुप है G का और ऑपरेशन है स्टार। देन गुरमनप्रीत अरोड़ा, यस सर, इसको पढ़ो, क्या है? ऑर्डर ऑफ एच। वाह, इसको पढ़ो, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सी। बस यही होती थ्योरम, यही है लैग्रांजेस थ्योरम। इतनी इजी, सुपर इजी, कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो किसी ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। यस सर, दैट इज आसान है ना। यस सर, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू कुछ क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, फ्रैक्शन आएगा, कैसा नंबर आएगा? जब कोई चीज किसी को डिवाइड करती है तो क्या आता है आंसर? पॉजिटिव। जैसे 2 से डिवाइड होता है 10, 2 से डिवाइड 10 होता है तो 2 5 जा 10, आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। क्यों? इज इक्वल टू के मान लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इंडेक्स, क्या कहते हैं इसको? इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ये होती है थ्योरम। आ गया समझ में? लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप, ये सब ग्रुप है। गुरमनप्रीत, यस सर, तो जो मान लो कि कोई एलिमेंट है जी, किसको बिलोंग करता? ग्रुप को, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि देन जी इन जी स्टार एच क्या होगा? कैसे डिफाइन करते हैं जी स्टार एच? क्या करते हैं, जी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ? सारे एच के, सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होते हैं एच के, ठीक है। ये होता है इज कौन सा कोसेट होता है? लेफ्ट कोसेट होता है, राइट होता है? लेफ्ट सेट ऑफ एच इन जी, ठीक। अब ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूँ मैं तुम्हें। जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं उनका यूनियन करके कितना आता है जी, ठीक है। यस सर, गुरमनप्रीत, हाँ, यस तो ये बल्कि हाँ जी आई कर लेते हैं इसको, है ना, जी आई, कोई दिक्कत तो नहीं है आई करने से? नहीं क्योंकि जी के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, G1 G2 G3 G4, तो मैंने आई लिख दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये नो सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? देखो जरा, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? लेफ्ट कोसेट है, कितने एलिमेंट हैं इसमें? 3 ये दूसरा लेफ्ट कोसेट है, इसके अंदर भी कितने हैं? 3 सेम ही होंगे सर। इसके अंदर भी कितने? 3, सबके अंदर बराबर होते हैं। यस, और कितने? 3 क्यों हैं? क्योंकि एच के अंदर भी कितने थे? 3 थे, 3। तभी तो थे 3। फर्क पड़ता है क्या जब आप किसी नंबर, जैसे आपने 1 लिया, 1 की मल्टीप्लाई कराई अपने इससे, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट भले बदल रहे हैं, लेकिन नंबर गिनती में थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, काउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यस सर, अच्छा अब आपने बताना है मुझे, इफ लेट कुछ ना कुछ होगा, मॉड जी कितना होगा, मान लो इसको n मान लेते हैं, कितना मान लिया? n, कुछ ना कुछ मान लो। इसका ऑर्डर कितना ग्रुप का? n एलिमेंट है, और सब ग्रुप में कितने एलिमेंट है? m है, ठीक है गुरमनप्रीत। यस सर, देन अब आपको मुझे बताना है कि इसमें कितने होंगे, ईच कोसेट, ईच डिस्टिंक्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट हैज, बताओ गुरमनप्रीत कितने एलिमेंट होंगे इसमें? एम ही होंगे। एम ही होंगे, बहुत बढ़िया बताया तुमने, सही जवाब, एम ही होंगे, क्योंकि जितने एच में रहते हैं उतने ही रहते हैं ना। यस, हैज
एग्जैक्टली m एलिमेंट्स। ये बात तो बिल्कुल सही बताई तुमने। अब यूज करो इस वाली प्रॉपर्टी को, ये लिखाई थी मैंने आपको ऊपर, गुरमनप्रीत यस सर। कौन सी? ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करो, ये ऊपर जो मिटा ये रही, ये वाली रिमेंबर वाली। यस सर। क्या लिखाई थी? G1 स्टार H यूनियन G2 स्टार H। कहाँ तक करेंगे यूनियन? कितने हैं पता नहीं, कुछ ना कुछ तो होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। ईच डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, ईच ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। मान लो के हैं, कितने हैं के, देन ईच ऑफ द के डिस्टिंक्ट लेफ्ट। टोटल कितने डिस्टिंक्ट है? के हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट के हैं, सारे तो नहीं होते डिस्टिंक्ट। इसमें टोटल 6 थे, लेकिन डिस्टिंक्ट कितने निकले? 2 निकले। तो ऐसे कुछ ना कुछ होंगे, के होंगे, ठीक है। ये बताओ मुझे, के जो होगा वो n से छोटा होगा कि ज्यादा होगा? m से छोटा होगा कि बराबर होगा? के छोटा या बराबर होगा? छोटा या बराबर, राइट, वेरी गुड। ऑफ कोर्स या इंडीड लिख देता हूँ, सचमुच में जो के होगा वो छोटा होना चाहिए। सही बात है। यस। चलो, तो गुरमनप्रीत ये कितने कोसेट है? के है ना? के। और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है? n। ओके, ठीक। तो यूनियन आप किसका करने जा रहे हो? के कोसेट्स का कि n कोसेट्स का? के का। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये किसके बराबर आना चाहिए? जी के बराबर आना चाहिए, सही बात है। चलो, अब दोनों तरफ आप इनका वो निकाल लो, ऑर्डर। इधर भी डंडी लगा दो और अंदर ये लिख दो, कॉपी कर सकते हैं दोनों तरफ, ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। यस सर। चलो, इसके अंदर कितने एलिमेंट बोले थे तुमने? कोसेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? जितने एच में होते हैं, एच है में ना? होते हैं। यस। कितने एच में कितने? वेरी गुड। एम एलिमेंट। एम यूनियन का मतलब प्लस, ऐड। इसमें भी कितने हैं? इसमें भी एम है, प्लस इसमें भी कितने होंगे? अरे के क्यों होंगे? इसमें एलिमेंट कितने होंगे? एलिमेंट एम ही तो होंगे। तुमने तो कहा था कि हर कोसेट में एम ही है, तो तुमने तो कहा था एम। कितने दफा लिख दिया मैंने ये एम? कितने दफा लिख दिया? 8 टाइम्स। ये हुई ना बात, 8 टाइम्स। चलो, इक्वल टू इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें n। कितने? लेफ्ट वाले का आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? n आएगा। यस। एम के हो जाएगा ना? के। हाँ, और राइट में एन। यहाँ से निकल गया एम अपॉन एन, या एन अपॉन एम, एन अपॉन एम इक्वल टू के। एन किसको बोल रहे थे? एन किसको बोला था तुमने? ऑर्डर ऑफ जी तो। और एम किसको बोला था? ऑर्डर ऑफ एच को, इक्वल टू के। इसी को कहते हैं, के को क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ। ये प्रूफ करना था, देखो यस। इस प्रूफ में इस बात का यूज हुआ, इसीलिए रिमेंबर लिखा था कि याद रखना इस चीज को। कोई प्रॉब्लम?